Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the process of reproduction, development and parental care in amphibians, and we will discuss about the different modes of parental care and different modes of development in case of amphibians. Amphibians are dioecious, meaning that they have distinct male and female individual organisms, or we can say that their sexes are separate. The testes and ovaries of amphibians are located near the dorsal body wall, and fertilization is usually external, but in case of salamanders, only about 10% of all salamanders have external fertilization, while all others produce spermatophores. Therefore their fertilization is internal, and all caecilians have internal fertilization. A few anurans like frogs and toads have terrestrial nests. These nests are covered with foam, which reduces the loss of water. Sometimes these nests are placed near water. In a few species, larval stages are passed in egg membranes and the immature hatch into an adult like body. यानी उसमें लार्वल स्टेजेस जो है एग की मेम्ब्रेन्स के अंदर ही पूरी गुजरेंगी, उसके बाद जो है वो जब हैचिंग होगी तो फिर एडल्ट लाइक बॉडी जो है मर्ज होगी. वाई एम्फीबियंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉइस्ट हैबिटेट्स, ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज द डेवलपिंग एग्स ऑफ एम्फीबियंस लैक्स एनी रेजिस्टेंट कवरिंग्स. चूंकि इनके एग्स के इर्द गिर्द कोई रेजिस्टेंट कवरिंग नहीं होती जिससे इनकी प्रोटेक्शन हो सकती है, जैसे कोरियन है, एमनियन है, लेंटाइस वगैरह है. तो इसीलिए फिर जो है इनको मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो है ये एग जो है वो इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मौजूद रहे. डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मॉइस्ट हैबिटेट्स. In this slide you can see the diagram of urinogenital organs of the frog, that is the male and the female reproductive organs. Reproductive system of frog is responsible for the production of gametes which are released in water for fertilization. Similarities between human and frog system are limited to the fact that both possess paired testes ovary for gamete production. In both the sexes of frog, each gonad remains attached to the body of same side. In human, special ligaments attach the gonads to body wall. In male, testes is not abdominal in location. These are present in scrotal sac. But in case of frogs, testes delivers sperms inside the Bidder's canal running through kidney. The sperm exit testes through ureter, which is a common urinogenital duct. Ureter delivers sperms in cloaca. But in case of female frogs, ovaries shed the mature eggs in coelomic cavity. Eggs enter oviduct funnel to reach oviduct. Eggs enter cloaca through oviduct of both sides. In breeding season, frogs perform a false copulation, which is known as amplexus, so that both the sexes release huge number of gametes together in water. Gametes come out through cloacal aperture. Frogs' larvae are aquatic, gill breathing, and metamorphosis takes place in tadpoles when the frog becomes lung breathing and terrestrial. तो इसमें अगर हम ये गौर करें तो फ्रॉग के आपको मेल और फीमेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है. तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि फीमेल की यहाँ पे ओवरीज हैं बिल्कुल, इसी तरह से मेल जो है फ्रॉग है उसके भी यहाँ पे ये जो है आप टेस्टिस देख सकते हैं जो मौजूद हैं. तो ये टेस्टिस जो हैं ये स्पर्म्स को जो है रिलीज़ करेंगे, ओवरीज जो हैं वो एग्स को रिलीज़ करती हैं. तो इस तरह से ये दोनों स्पर्म्स और एग्स जो हैं इनको वाटर में जो है वो ये शेड करते हैं और वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है. यानी मेल जो है एम्प्लेक्सस करता है फीमेल के साथ, और फिर वो जो है स्पर्म्स और एग्स को वहाँ पे वो शेड कर रहे होते हैं. वो होनी इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही है, स्पर्म्स की भी और एग्स की भी, इन केस ऑफ फ्रॉग्स. Now we will discuss about the fertilization and development in salamanders. External fertilization is less common in case of salamanders. Only 10% of salamanders have external fertilization, which means that the remaining 90% salamanders have internal fertilization, and remaining salamanders develop spermatophores. अब स्पर्मेटोफोर क्या होता है? A spermatophore or sperm ampulla is a capsule or mass containing spermatozoa created by males of various animal species
especially salamanders, and they are transferred in entirety to the female's ovipore during reproduction. तो अब ये स्पर्मेटोफोर क्या है कि ये एक ऐसा स्पर्म एम्प्यूला होता है जिसमें बेशुमार स्पर्मेटोजोआ होते हैं, और ये मेल जो है पूरे के पूरे इसको ट्रांसफर कर देता है फीमेल की ओवीपोर में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी सारे स्पर्मेटोजोआ को फीमेल की ओवीपोर में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन केस ऑफ स्पर्मेटोफोर्स. So most of the salamanders and newt species create spermatophores which the females may choose to take up or not depending on the success of the male's mating display. And the eggs in case of salamanders are deposited in soil or water and they may be retained in oviduct during development. यानी डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ हैं. अक्सर में जो है सॉइल के अंदर एग्स को डिपॉजिट किया जाता है, अक्सर में वाटर के अंदर, और अक्सर जो है वो ओविडक्ट के अंदर जो है एग्स को रख लेती हैं यानी कि डेवलपमेंट के दौरान. But now we will discuss about the caecilians. All caecilians have internal fertilization and 75% caecilians have internal development too. टैडपोल लार्वे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्फीबियंस डेवलपमेंट, और ये टैडपोल लार्वे जो होते हैं दे पोजेस लेटरल लाइन, गिल्स एंड टेल. दिस लार्वा इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. इट हैज अ डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर्म ऑफ लोकोमोशन एंड डाइट. जैसे कि अब अगर फ्रॉग्स के केस में हम देखें तो टैडपोल लार्वा जो है वेजिटेशन पे, एक्वेटिक वेजिटेशन पे फीड कर रहा होता है, जबकि एडल्ट जो है वो कार्निवोरस होते हैं. These differences reduce competition between adult and larvae. चूँकि दोनों का जो फीडिंग मोड है वो डिफरेंट है एडल्ट का और लार्वे का, तो ये मेटामॉर्फोसिस की वजह से इनके दरमियान जो कंपटीशन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है एडल्ट के दरमियान और लार्वल स्टेजेस के दरमियान. Now in this slide you can see the male spotted salamanders and the spermatophores of these salamanders. These are the spermatophores of salamanders. After male spotted salamanders emerge from hibernation and arrive at their ancestral breeding pools, they cluster in groups called congresses, await the arrival of females, pair up with one, and then the pair performs a courtship dance. Unlike some species of amphibians, the male spotted salamander does not fertilize the eggs as the female lays them. Rather, she collects his sperm into her body and internal fertilization takes place. When the female is sufficiently stimulated, the male deposits up to 80 spermatophores, which are pyramid-shaped plugs of mucus with a sperm capsule at the top. Often on a submerged branch, the male maximizes the chances of insemination by depositing many scattered spermatophores, covering every spermatophore he encounters, even his own, with a new spermatophore. In so doing, he increases his spermatophore count while simultaneously eliminating a rival's spermatophores. The female then crawls over a spermatophore and positions her vent or cloaca so as to allow the lips of her cloaca to detach the sperm capsule. Within a short period of time, the salamanders retreat back to the woods, rarely to be glimpsed until next spring's breeding season. So ये आप इस स्लाइड में इनका जो है वो एक लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं. जनरलाइज जो है वो कि ये सैलमेंडर है, ये इसके एग मैस है, ये इसका जो है वो गिल्ड एडल्ट है, और एक्वेटिक लार्वा जो है ये इस तरह से इनका जो है एक लाइफ साइकिल जनरलाइज आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और ये इसके स्पर्मेटोफोर्स हैं. Because frogs and toads are ectothermic, meaning that they depend on external heat sources for maintaining their body temperature, or we can say that their internal physiological sources of heat are of relatively small or quite negligible importance in controlling body temperature. So these organisms have to rely on environmental heat sources to maintain their body temperature. तो फ्रॉग और टोड जो हैं ये एक्टोथर्मिक हैं. दे ब्रीड, फीड एंड ग्रो ओनली ड्यूरिंग वार्म सीजन्स ऑफ द ईयर. इसीलिए ये ब्रीडिंग भी तब भी करते हैं, ग्रोथ भी इनकी तब होती है, और फीडिंग भी तब करते हैं जब वार्मर सीजन आता है साल का. वन ऑफ द फर्स्ट ड्राइव्स आफ्टर द डोरमेंट पीरियड इज़ ब्रीडिंग. अब सबसे पहली जो अब डोरमेंसी के बाद इनकी ख्वाहिश होती है वो ब्रीडिंग करना है. इन स्प्रिंग मेल्स कॉल्स वोसिफियसली टू अट्रैक्ट फीमेल्स.
यानी मेल जो है बहुत लाउड कॉल्स जो हैं वो देते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। When their eggs are mature, female enter water and are clasped by males in a process called amplexus. After a female lays eggs, a male discharges sperm over the eggs to fertilize them. After fertilization, the jelly layer absorbs water and swell. Eggs are laid in large masses, usually anchored to vegetation. अब ये बेशुमार एग्स को जो है वो शेड करते हैं, यानी मेल और फीमेल एम्प्लेक्सस करते हैं, जिसमें मेल डॉर्सल होता है फीमेल की बॉडी पे, और मेल और फीमेल दोनों एग्स और स्पर्म्स को रिलीज़ करते हैं वाटर के अंदर, और फिर वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद वो स्वेल कर जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज मैसेज में एग्स को ले किया जाता है, जो कि अक्सर वेजिटेशन के साथ जो है वो चिपके हुए होते हैं। Now the fertilized eggs of frogs and toads begins development almost immediately. By repeated divisions, which is known as cleavage, an egg is covered into a hollow ball of cells which is known as blastula. The blastula undergo gastrulation, and gastrulation is a phase early in the embryonic development of most animals, during which the single-layered blastula is reorganized into a multi-layered structure known as the gastrula. तो ब्लास्टूला से फिर गैस्ट्रुलेशन स्टेज हो जाएगी जिसमें जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, and then continues to differentiate to form an embryo with a tail bud. At 6 to 9 days, depending on temperature, a tadpole hatches from the protective jelly coats that had surrounded the original fertilized egg. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें टैडपोल के, तो एट हैचिंग अ टैडपोल हैज़ अ डिस्टिंक्ट हेड एंड बॉडी विद अ कंप्रेस्ड टेल। तो हैचिंग के टाइम पे टैडपोल का हेड भी होता है बना हुआ, बॉडी भी होती है और कंप्रेस्ड टेल इसकी होती है। इट्स माउथ इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड एंड इज प्रोवाइडेड विद हॉर्नी जाज फॉर फीडिंग बाय स्क्रैपिंग वेजिटेशन फ्रॉम हार्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसके पास जो है वो बहुत से सख्त जो है वो जाज होते हैं जिसकी मदद से ये स्क्रैपिंग कर रहा होता है और एक्वेटिक वेजिटेशन पे ये फीड करता है, यानी हर्बीवोरस होता है। बट देयर एडल्ट फॉर्म इज कार्निवोरस। बिहाइंड द माउथ इज अ वेंट्रल एडहेसिव डिस्क फॉर क्लिंगिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसके माउथ के पीछे जो है वो एक डिस्क पाई जाती है जो कि किसी भी सरफेस के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको क्लिंग करने में, अटैच करने में हेल्प करती है। इन फ्रंट ऑफ द माउथ आर 2 डीप पिट्स विच लेटर डिवेलप इनटू नॉस्ट्रिल्स। अब इसके माउथ के सामने जो है वो कुछ 2 बारीक बारीक घड़े होते हैं, बने हुए सुराख बने होते हैं, जो कि बाद में इसके नाक के नथने बन जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स बन जाते हैं। स्वेलिंग फाउंड ऑन ईच साइड ऑफ द हेड लेटर बिकम्स एक्सटर्नल गिल्स। अब इसके सार के दोनों तरफ स्वेलिंग्स होती हैं जो बाद में जाके एक्सटर्नल गिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड दे पोजेस 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स। There are 3 pairs of external gills which later transform into internal gills. तो फिर बाद में जाकर वो internal gills में convert हो जाते हैं and become covered with the flap of skin which is known as operculum on each side. तो operculum से फिर वो cover up होके हर साइड पे, दोनों साइडों पे इसके जो है वो हेड की पाए जाते हैं operculum. In case of anurans like frogs and toads, on the right side the operculum or gill covering completely fuses with the body wall. यानी इनका जो राइट साइड होता है पोरकुलम का वो बॉडी वॉल के साथ मुकम्मल तौर पे मिल चुका होता है, जुड़ चुका होता है। बट ऑन द लेफ्ट साइड अ स्मॉल ओपनिंग विच इज़ नोन एज स्पाइरैकल रिमेन्स। इनकी लेफ्ट साइड पे जो है एक छोटी सी ओपनिंग जो होती है स्पाइरैकल जिसको कहा जाता है वो हमेशा ही रहती है, और स्पाइरैकल जो है उसमें से जो है पानी फिर गुजरता हुआ इंटरनल गिल्स की जानिब फिश के जाता है। तो अब ये जो स्पाइरैकल होती है लैटिन वर्ड स्पाइरैकुलम से वर्ड निकला है विच मीन्स एयर होल। तो स्पाइरैकुलम का लफ्जी मतलब क्या है? हवा का सुराख। वाटर फ्लोज थ्रू द स्पाइरैकल आफ्टर एंटरिंग द माउथ। अब माउथ में एंटर होने के बाद पानी जो स्पाइरैकल के थ्रू फ्लो करता है एंड पासिंग द इंटरनल गिल्स, फिर इंटरनल गिल्स में से पास करता है, जो कि आपको बताया था 3 पेयर्स ऑफ गिल्स इनके अंदर जो हैं वो पहले पाए जाते हैं, एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं। हाइंड लेग्स अपीयर फर्स्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब इनके अंदर जो है सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है हाइंड लेग्स बनती हैं, वाइल फोर लिम्स रिमेन टेम्परली हिडन बाय फोल्ड्स ऑफ द ओपरकुलम। तो 4 लिम्स जो होते हैं वो ओपरकुलम के फोल्ड्स की वजह से जो है नज़र नहीं आ रहे होते, उसके नीचे छुपे होते हैं। द टेल इज रिजॉर्ब्ड। तो रिजॉर्ब्ड क्या है? We can say that the gradual breakdown into component materials and dispersal in the circulation। किसी चीज़ का अपने component materials में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है टूट जाना और खून के अंदर जो है बिखर जाना, उसको रिजॉर्प्शन कहते हैं।
तो ये या ख़त्म हो जाने को भी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि ख़त्म हो जाती है टेल इनकी। तो द इंटेस्टाइन बिकम्स मच शॉर्टर, अब इनकी इंटेस्टाइन शॉर्ट साइज़ की हो जाएंगी। द माउथ अंडर गोज आर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द एडल्ट कंडीशन, तो हॉर्नी बीक की जगह पे एडल्ट माउथ इनका बन जाएगा, क्योंकि इनकी जो एक्वेटिक स्टेज थी टैडपोल उसमें हॉर्नी बीक होती है, बाद में इनका एडल्ट माउथ जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो दे आल्सो डेवलप्स लंग्स एंड गिल्स आर रिजॉर्ब्ड, टेल भी रिजॉर्ब्ड हो जाएगी और गिल भी रिजॉर्ब्ड तब हो चुके होंगे। लेपर्ड फ्रॉग्स यूजुअली कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस विद इन 3 मंथ्स, अब जो लेपर्ड फ्रॉग्स हैं उनकी मेटामॉर्फोसिस 3 महीनों में होती है। वेयर एज बुल फ्रॉग्स टेक्स 2 to 3 years टू कंप्लीट द प्रोसेस, अब बुल फ्रॉग्स को यही 2 से 3 साल लगते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करने में, यानी इसका पीरियड भी वेरी करता है मेटामॉर्फोसिस का इन केस ऑफ फ्रॉग्स, यानी स्पीशीज टू स्पीशी वेरी करता है। Migration of frogs and toads is correlated with their breeding habits. In case of frogs and toads, male usually return to a pond or stream before females, which they then attract by their calls. तो बाद में ये फीमेल्स को वहाँ पे कॉल जो है वो मेटिंग कॉल्स जो हैं वो देते हैं, वोकलाइजेशन के ज़रिए से फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं उससे ब्रीडिंग एरिया में। Some salamanders also have a strong homing instinct, returning each year to reproduce in the same pool to which they are guided by olfactory cues. अब सैलमेंडर्स के केस में क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, यानी इन्नेट इनके अंदर एक बिहेवियर होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमेशा उसी जगह पे उसी पूल में रिप्रोडक्शन करने जाते हैं जहाँ पे ये पहले पिछले साल गए थे, और ये पता इन्हें कैसे चलता है, दिस इज़ गाइडेड बाय देयर ऑल्फैक्टरी क्यूज़। अब इनके जो सूंघने की स्मेल होती है, जो इशारे होते हैं, वाटर को जो वाटर को स्मेल करने की जो एबिलिटी है उसकी वजह से ये वाटर में मूव करते हुए उसी ब्रीडिंग एरिया या पूल में जाते हैं जहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर ब्रीडिंग की होती है। द इनिशियल स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन इन मैनी केसेस इज एट्रीब्यूटेबल टू अ सीजनल साइकिल और इन द गोनेड्स plus hormonal changes that increases the frog's sensitivity to changes in temperature and humidity. अब इनका जो स्टिमुलस होता है इनिशियल माइग्रेशन के लिए वो क्या होता है, इनका सीजनल साइकिल जो होता है गोनेड्स के अंदर, और या इनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं या जो इनकी सेंसिटिविटी होती है टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी पे, ये इस पे डिपेंड करता है। यानी ये सारी चीज़ें मिलके जो है एक स्टिमुलस का काम करती हैं जिसकी वजह से ये हर साल जो है वो अपनी माइग्रेशन करते हैं और अपने ख़ास एरिया में जाके ही ब्रीडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ पे ये लास्ट ईयर गए थे। In this slide, the generalized life cycle of anurans is shown, which means the frogs and toads. The life cycle of a frog consists of 3 stages, and these stages are eggs, larva, and adult. As the frog grows, it moves through these stages in a process known as metamorphosis. Frogs are not only the animals to undergo metamorphosis, most other amphibians also undergo remarkable changes throughout their life cycles, as do many species of invertebrates. During metamorphosis, two hormones, which are prolactin and thyroxine, control the transformation from egg to larva to adult. The breeding season for frogs usually occur during the spring in temperate climates and during the rainy season in tropical climates. When male frogs are ready to breed, they often use loud croaking calls to attract partners. Males produce these calls by filling a vocal sac with air and moving the air back and forth to create a chirp-like sound. When mating, the male frog holds onto the female's back, clasping his front legs around her waist or neck. This embrace is referred to as amplexus. Its purpose is to ensure that the male is in the optimal position to fertilize the female's eggs as she lays them. Many species lays their eggs in calm water among vegetation, where the eggs can develop in relatively safety. The female frog lays numerous eggs in masses that tend to clump together in groups known as spawn. As she deposits the eggs, the male releases sperm onto the eggs and fertilizes them. In many species of frogs, the adult leave the egg to develop without further care. But in a few species, parents remain with the eggs to look after them as they develop. As the fertilized eggs mature, the yolk in each egg splits into more or more cells and begins to take the form of a tadpole, the larva of a frog. Within 1 to 3 weeks, the eggs is ready to hatch and tiny tadpoles break free.
अब तकरीबन एक से यानी कि जो है वो 3 हफ्ते के दौरान जो होता है वो एग्स जो है वो हैच कर जाते हैं। तो वो जो हैच एग होते हैं उससे जो है वो क्या निकलता है, टैडपोल लार्वा निकल आता है। जैसे अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो एग्स इसने दिए हैं फीमेल फ्रॉग ने, ये जो हैं फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। तो इससे तकरीबन 3 हफ्ते के दौरान, 1 से लेकर 3 हफ्ते के दौरान जो है ये टैडपोल लार्वा जो है इमर्ज होता है, विच ग्रोज लार्जर एज दे फीड ऑन एल्जी एंड बिट्स ऑफ प्लांट मटीरियल इन द वाटर। उसके बाद क्या होता है, एज इट बिगिंस मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल ग्रोज हाइंड लिम्स। तो ये पहले क्या करेगा, अपने हाइंड लिम्स को ग्रो करेगा, उसके बाद 4 लिम्स डेवलप होंगे। आफ्टर बोथ पेयर्स ऑफ लिम्स आर कंप्लीट एंड द एनिमल हैज एक्सचेंज्ड इट्स गिल्स फॉर लंग्स द फ्रॉगलेट क्रॉल्स ऑन टू लैंड। तो जब इसके गिल्स की जगह पे लंग्स बन जाएंगे तो ये लैंड पे क्रॉलिंग करता हुआ आ जाएगा। और जैसे आपको पहले बताया था कि इट पोजेस 3 पेयर्स ऑफ गिल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, द फ्रॉग रिजॉर्व्स द रेस्ट ऑफ इट्स टेल एंड कंटिन्यू टू ग्रो। तो फ्रॉग की ये टेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और ये ग्रो करना शुरू कर देगा अंटिल इट रीचेज इट्स एडल्ट बॉडी साइज। At approximately 12 weeks of age, the tadpole's gills and tails have been fully absorbed into the body, meaning that the frog has reached the adult stage of its life cycle. It is now ready to venture out onto dry land and in time repeat the life cycle. तो तकरीबन 12 हफ्ते के तक जो है अक्सर स्पीशीज़ के अंदर जो है टैडपोल के गिल्स और टेल्स जो होती है मुकम्मल तौर पे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और फ्रॉग इसका मतलब क्या होता है कि एडल्ट साइज़ को पहुंच चुका होता है। तो लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि बुल फ्रॉग का भी और दूसरे फ्रॉग्स का भी। सो इन दिस स्लाइड देयर इज़ अनदर ओवरव्यू ऑफ द फ्रॉग डेवलपमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये मेल और फीमेल फ्रॉग जो है एम्प्लेक्सेस कर रहे हैं, यानी मेल फ्रॉग जो है वो डॉर्सल है फीमेल बॉडी पे। तो अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये एग्स और स्पर्म्स को जो है वो ले कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। तो ये एग्स और स्पर्म जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्लीवेज हुई है, तो क्लीवेज के बाद जो है ऑर्गन फॉर्मेशन हुई है, फिर टैडपोल लार्वा बना है और ये टैडपोल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये एडल्ट तकरीबन नियरली एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और उससे एडल्ट जो है या ओल्ड जो है वो एक फ्रॉग जो है वो डिवेल्प हुआ है। तो यानी ये इस तरह से एक शॉर्टर स्टेजेस जो हैं आपको दिखाई गई हैं लाइफ साइकिल की फ्रॉग की डेवलपमेंट के दौरान। So we can say that internal factors like hormones and external factors determine the timing of reproductive activities in case of amphibians. जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि एम्फीबियंस जो होते हैं इनके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन वगैरह है, या एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है जो कि टेम्परेट रीजन्स के एम्फीबियंस हैं ठंडे इलाकों के, तो वहाँ पे जब मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू होता है तो एम्फीबियंस के अंदर जो पहली ड्राइव होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन करना यानी ब्रीडिंग करना। Temperature is the most important environmental factor in temperate regions which induce physiological changes in amphibians. तो इनके अंदर जो है फंक्शनल चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं। These changing control the breeding and breeding periods. Breeding occur in spring and summer. तो ये दो मौसमों के अंदर हो सकती है, या मौसम बहार में या मौसम जो है गर्मा जो मौसम है या रेनी सीजन जिसे हम कह सकते हैं इसमें आता है जो। इन ट्रॉपिकल रीजन्स रेनी सीजन इंड्यूस ब्रीडिंग इन एम्फीबियंस। तो जो गर्म इलाके हैं जैसे पाकिस्तान है या दूसरे एरियाज हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें एम्फीबियंस जो हैं ब्रीडिंग करते हैं। द इंडिविजुअल लोकेट ब्रीडिंग साइट्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल मेट्स बाय कोर्टशिप बिहेवियर। तो ये कोर्टशिप बिहेवियर के जरिए अपने पोटेंशियल मेट्स को लोकेट करते हैं। So a courtship behavior or courtship display is a set of display behaviors in which an animal, usually a male, attempts to attract a mate. The mate exercises choice, so sexual selection acts on the display. These behaviors often include ritualized movement like dances, vocalizations, mechanical sound production or displays of beauty, strength or agonistic ability. तो अब जो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में जो होते हैं या जो एम्फीबियंस हैं ये कोर्टशिप बिहेवियर दिखाते हुए जो है अपने ब्रीडिंग साइट्स को जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं और अपने मेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, इट प्रिपेयर द इंडिविजुअल्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो इससे रिप्रोडक्शन के लिए इंडिविजुअल जो है वो रेडी हो जाते हैं। It also ensures that eggs are fertilized and deposited at proper locations. तो इससे क्या होगा कि एग्स की फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी और उनको प्रॉपर लोकेशंस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा और अक्सर जो है इसमें फिर मैटरनल या पैटर्नल केयर भी प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग एम्ब्रियोज को या अपने जो उनके बेबी होंगे।
The most salamanders use olfactory and visual signs for courtship and mating. तो सैलमेंडर्स के केस में क्या होता है कि ये अपने olfactory और visual signs को courtship के लिए जो है या mating के लिए यूज़ करते हैं. बट इन केस ऑफ एन्यूरन्स जिसमें फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं, दे यूज़ वोकलाइजेशंस एंड टेक्टाइल साइंस. तो ये अपनी आवाज़ को जो है वो यूज़ करते हैं या टच स्टिमुलस के ज़रिए से जो है ये फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं. मैनी स्पीशीज़ कॉन्ग्रीगेट एट वन प्लेस ड्यूरिंग ब्रीडिंग एक्टिविटी. मेल वोकलाइजेशंस आर स्पीशीज़ स्पेसिफिक. अब एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं मेल और फीमेल्स, तो वहाँ पे अब मेल की जो कॉल है वो सिर्फ सेम स्पीशी के मेंबर ही रिसीव कर पाएंगे इन केस ऑफ फ्रॉग्स और टोड्स. ये नहीं हुआ कि दूसरी स्पीशी भी उसको रिसीव कर सके या समझ सके. These are used for initial attraction and contact between mates. Then tactile cues becomes more important. The male mount on the female. अब मेल फीमेल के ऊपर चढ़ जाता है. The male grasps the female with the help of his forelimbs around her waist. The male is dorsal to the female and this position is known as amplexus, which lasts from 1 to 24 hours. The male releases sperms and female releases eggs during amplexus. Now in this slide you can see the amplexus in anurans in which the male mounts on the female. The male grasps the female with the help of his forelimbs around her waist and the male is dorsal to the female and this dorsal position is known as amplexus. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल जो होता है ये फीमेल को ग्रैस्प करता है उसकी वेस्ट से और ये डॉर्सल होता है फीमेल के ऊपर. और इस दौरान क्या होता है फीमेल और मेल दोनों एग्स और स्पर्म्स को रिलीज़ करते हैं वाटर के अंदर भी या किसी लीफ के ऊपर, कोई भी सरफेस जहाँ पे ये जो है ब्रीडिंग करने गए हुए हैं. तो फिर वो जो शेड किए हुए एग्स और स्पर्म्स होकर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. सो दिस डॉर्सल पोजीशन इज़ नोन एज एम्प्लेक्सिस एंड दिस पोजीशन लास्ट फ्रॉम 1 to 24 आवर्स. ये 1 से 24 घंटे तक एम्प्लेक्सिस की पोजीशन में रह सकते हैं. ये डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी का कितना टाइम एम्प्लेक्सिस में स्पेंड करते हैं ये. द मेल रिलीजेस स्पर्म्स एंड द फीमेल रिलीजेस एग्स ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस. तो इसमें स्पर्म्स और एग्स को रिलीज किया जाता है. There is little known about the breeding behavior of caecilians. In this slide you can see the images of caecilians as well. Their males possess an intromittent organ. An intromittent organ can be defined as a general term for an external organ of a male organism which is specialized to deliver sperms during copulation, and it is considered as a hallmark characteristics of internal fertilization. In case of caecilians, their intromittent organ is phalloidium, and most of them are egg layers, and their eggs are gelatinous, and some are live bearers as well. Their eggs are housed in uterus, and embryos develop and hatch. Then they feed on uterine milk, which is secreted by oviducts. In this slide, the intromittent organ of a caecilian is shown, which is known as phalloidium. And this intromittent organ enabled them to practice internal fertilization. Caecilians' ovaries are paired and are closely connected with the kidneys. Oviparity occurs in most caecilians, which means that they give birth to their young ones, with some species specific parental care occurring until hatching. अब कुछ स्पीशीज के अंदर पेरेंटल केयर भी होती है जब तक कि एग्स की हैचिंग नहीं हो जाती है. नाउ वी विल स्टार्ट ओवर अनदर टॉपिक विच इज़ द पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस. पेरेंटल केयर इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एग. अब कुछ ये एडवांटेजेस हैं पेरेंटल केयर के कि एग की डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको प्रेडेटर अटैक नहीं कर पाएगा. रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम पेरेंट्स. तो पेरेंटल केयर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि इसमें बहुत सारा एनर्जी जो है इन्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स फॉर केयरिंग देयर यंग वंस और फॉर केयरिंग देयर एम्ब्रियोज और एग्स एटसेट्रा. मोस्टली बोथ पेरेंट्स केयर फॉर द क्लचेस. क्लच इज अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ एग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एम्फीबियंस. यानी एम्फीबियंस हों, बर्ड्स हों या रेप्टाइल्स हों, इनके एग्स जो हैं वो इकट्ठे जो देते हैं, ये एग्स का जो एक ग्रुप होता है, क्लस्टर होता है, दिस इज़ नोन एज क्लच. It may be parental care or maternal care. The species with internal fertilization have maternal care. यानी वो स्पीशीज जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अमल होगा उनमें मैटरनल केयर होगी, और वो स्पीशीज जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है उनमें पैटर्नल केयर होती है, यानी उनमें जो है मेल केयर करेगा. तो जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें हमने देखा था सैलमेंडर्स हैं और सेसिलियंस हैं. सो दे इन दिस केस
इनकी जो मदर होगी या इनकी जो फीमेल पेरेंट होगी वो केयर करेगी अपने यंग वंस की। The second care shown by the amphibians is paternal care, which is exhibited by the species having external fertilizations. अब इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो किसकी हैं, फ्रॉग और टोड्स आ जाते हैं। एंड इन केस ऑफ पैटर्नल केयर इट इन्वॉल्व्स एरिएशन ऑफ एग्स। एग्स को जो है प्रॉपर जो है वो मूव किया जाता है वाटर के अंदर ताकि उनकी एरिएशन होती रहे, वो आपस में क्लिंग ना कर जाएं और हर एग को प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे। सेकंड वन इज़ क्लीनिंग एंड मॉइस्चरिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल एग्स। तो जो खुश्की पे एग ले करेंगे वो अपने एग्स को क्या करेंगे, सफाई उनकी करेंगे और उनको मॉइस्ट रखेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब एग्स को जो है प्रेडेटर से भी बचाना है तो वो मेल जो पेरेंट है वो ऐसी केयर प्रोवाइड करेगा एग्स की केयर करते हुए। फोर्थ वन इज़ रिमूवल ऑफ डेड एंड इन्फेक्टेड एग्स। तो जो डेड और इन्फेक्टेड एग्स हो गए हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल पाई या किसी वजह से वो डेड हो गए हैं तो या इन्फेक्टेड एग्स होंगे तो उनको भी रिमूव करना है बाकी एग से ताकि उनमें भी इन्फेक्शन ना चली जाए। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं ये एन्यूरेंस परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ एन्यूरेंस, और इनके मेल जो होते हैं वो ये सारा काम करते हैं कि एग्स की एरिएशन करते हैं, उनकी क्लीनिंग मॉइस्चरिंग करते हैं, एग्स को प्रेडेटर से बचाते हैं और डेड और इन्फेक्टेड एग्स को क्या करते हैं उनमें से रिमूव करते जाते हैं जैसे जैसे कोई डेड या इन्फेक्टेड एग वो देखते हैं। Now in this slide we will discuss about the strategies of parental care in 2 genera of frogs, and these genera include the genus Pipa and the second one is Rheobatrachus. In the genus Pipa the female carry eggs on their backs जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, और जीनस Pipa में 7 स्पीशीज अब तक रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं। During mating in the genus Pipa, the pair swims in large vertical loopings. As soon as they end up on top of one of these circles, the female deposits 1 until sometimes 10 eggs, which is fertilized in the following looping by the male, after which he pushes it in the thickened skin layer on the back of the female. Eventually, an clutch can consist of 40 to 100 eggs. Now the eggs develop and soon larvae will hatch. Yet they do not leave the cavity on their mother's back, but will stay there and completely transform into young frogs. Only when the frogs are fully developed, there are openings in the mother's back that are 1/4 of an inch in diameter. Once the young frogs are ready, they crawl out of the back of the mother to swim directly to the surface to breathe in fresh air. The development of egg to fully developed young takes an average of 15 to 18 weeks, but may take 12 to 20 weeks. This depends mainly on the temperature of the water and whether the young were able to occasionally feed while on in the back of their mother with small food such as water fleas. It is therefore advisable to add lots of small items like water fleas and rotifer to the water during the last stage of the young frogs during their development if you are growing them in the aquarium. The second genus is Rheobatrachus. तो इसके अंदर 2 स्पीशीज़ देखी गई थी 1980s में, लेकिन अब ये जो है नापैद हो चुकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको देखा गया था। द 2 स्पीशीज ऑफ Rheobatrachus वर डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। देयर फीमेल ब्रूडेड देयर टैडपूल लार्वा इन देयर स्टमक। अब ये देख सकते हैं आप इस इमेज में कि टैडपूल लार्वा जो है या उसका जो यंग वन है वो उसके माउथ में फीमेल ने अपने रखा हुआ है, जो अपने स्टमक में जिसकी वो ब्रूडिंग करती थी। The young come out through the mouth of the female, but it is not known whether the female swallow eggs or tadpole larva. अब ये नहीं पता कि ये एग को इसने जो है वो स्वेलो किया था या टैडपूल लार्वा को स्वेलो किया था, जिसकी वजह से इसकी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टमक में की इसने। द स्टमक्स ऑफ फीमेल एक्सपेंडेड एंड फिल मोस्ट ऑफ हर बॉडी कैविटी ड्यूरिंग ब्रूडिंग। दस द स्टमक स्टॉप प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। अब चूंकि इसने ब्रूडिंग करनी होती है तो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिक्रीशंस पैदा नहीं होंगे जिससे ये ताकि डैमेज ना हो इसका जो न्यू बोर्न है। सैलमेंडर्स एंड सेसिलियंस। विविपैरिटी एंड ओविपैरिटी अकर्स इन सैलमेंडर्स एंड सेसिलियंस। तो जो सैलमेंडर्स और सेसिलियंस हैं ये जो हैं क्या करते हैं, जब अगर विविपैरिटी क्या है कि बच्चे देना और ओविपैरिटी क्या है अंडे देना, तो ये बच्चे और अंडे देते हैं दोनों ग्रुप्स जो हैं। So in this slide you can see the image of Suriname toads, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने अपनी बैक पे जो है फीमेल ने बेशुमार एग्स को जो है वो अटैच किया हुआ है।
Suriname toads are members of the frog genus Pipa within the family Pipidae. They are native to northern South America and extreme southern Central America, which is the Panama. Like other pipids, these frogs are almost exclusively aquatic, and there are 7 recognized species in the genus Pipa. So in this slide, the gastric brooding frog image is shown. तो जिसको रियोबैट्रैकस भी कहते हैं, and it is the genus of extinct ground dwelling frogs native to Queensland in eastern Australia. तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले फ्रॉग थे जिनको 1980s में देखा गया था और उसके बाद नजर नहीं आए. The genus consisted of only 2 species, both of which became extinct in the mid 1980s. The genus is unique because it contains the only 2 known frog species that incubated the pre-juvenile stages of their offsprings in the stomach of their mother.